So first question, you have to see what is version control system. Second, you need to Mm. look into difference between the distributed and centralized version control system. And Mm. then you have to give the example, which one you were used in the you used in your organization. Okay. Mm. And why did you choose Git over TFVC? Mm. So the answer is pretty simple. Our project requirement is more required more modern tools, which are more of Git oriented or uh, Git adaptable compared to the TFAC, which is stick to the Azure DevOps. So we don't Mm. want any dependency on Azure DevOps, and that's why we went for Git, which give more hands and more space to discover more of the things like the Git webhooks part, then Git ops, then Git actions. Okay, so these things we discovered a lot of things. So that's why we switched to Git compared to our TFSC. Then Yes. what are the challenges you faced? So the very first challenge was it possible? We did a lot of research and we come to the conclusion that yes, it's possible and couple of code required. But since our script were more of TFPC inclined, so we need to change those script which were written on Perl. But now then we made it more friendly towards the Windows. We were working mostly on the Windows operating system. So Mm. we convert those Perl scripting to PowerShell, and it became more PowerShell and use all the code that is Git oriented, compare not as Team Foundation oriented. That is TFSC. Mm. Fourth thing, they will ask or counter that Git actually do the local copy, okay, instead of working on the central version control, right? So when you Yes. do the local copy, it is going to cost a lot of time. How would you deal Mm. with that one? If my suppose, how did you deal with that one? And if suppose my repository is 60 or 70 GB long, then it is going to cost too much of time for the developer and it is very frustrating as well. So what is the use of Git over here? So Mm. you are absolutely right, sir. That's very true. We also consider that point in our organization, and we come to the conclusion that most of the space or most of the size is being taken over by the DLLs and or other binary files. And our source code or the main source code was about 1 or 2 GB, which hardly takes 5 minutes to clone it. So what we did, there is a new term known as Git LFS. Okay. So what does Git LFS did? So Git LFS create a pointer. We use JFrog. JFrog, remember? JFrog is a, Mm. I'll show you what is JFrog. So JFrog एक artifact management system है, okay? Is a unified DevOps or DevSecOps automation managing and securing software binaries. Okay, Mm. remember. तो हमारा इश्यू किससे था? Binaries से था, right? Yes. So what we did, we migrated all our binary files to JFrog, okay, because it is not necessary for the developers to clone this binary files, right? Mm. Yes. क्योंकि उनको उनसे मतलब नहीं है, उनको एक्सेस मतलब नहीं है, वो तो अपना सोर्स कोड पे काम करेंगे और बिल्ड करेंगे. Mm. Okay, so now the thing is we migrated everything over there and Git LFS help us to establish a connection between our binaries, okay, which is and our source code repository. So Git LFS क्या करता है, एक पॉइंटर फाइल बनाता है. कहाँ पर बनाएगा? वो आपके सोर्स कोड रिपोजिटरी में बनाएगा. सपोज ये मेरा सोर्स कोड रिपोजिटरी है, कोई भी एक रिपोजिटरी में उठा लेता हूँ. ये एक रिपोजिटरी है, ठीक है. क्या नाम है इस रिपोजिटरी का? बैच डेवऑप्स. सो यहाँ पर क्या करेगा, वो एक पॉइंटर फाइल बना देगा, एक ही फाइल बनाएगा पॉइंटर फाइल, जिससे सारे जितने भी आर्टिफैक्ट है, बाइनरीज हैं, वो सब लिंक हो जाएंगे. सो अब क्या होगा, व्हेन यू विल क्लोन इट, you don't have to clone the binaries. You will only clone that file which contain the pointer pointing to the our binaries. Okay. Okay, तो अब Mm. ये सारे यहीं रहेंगे. ओके, Mm. बाइनरीज यहीं रहेंगे. मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है इनके पॉइंटर्स, सारे बाइनरीज के पॉइंटर अपने रिपोजिटरी में. तो अगर मुझे कहीं चाहिए होगा कि बाइनरीज रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसी बाइनरी को डाउनलोड करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड ऑल द बाइनरीज एंड ऑल.
ओके, बट इससे क्या हुआ कि मेरे जितने भी बाइनरीज के साइज थे वो सब अब माइग्रेट हो गए जेफ्रॉग पे. सो आई एम नॉट गोइंग टू क्लोन इट एवरी टाइम. नो डेवलपर नीड टू क्लोन इट. They will only clone the source code, and they will, along with the source code, they will get the option of cloning your pointer. पॉइंटर फाइल साथ में क्लोन हो जाएगा. दैट्स इट. पॉइंटर फाइल कितना ही साइज लेता है? 5 से 6 KB. ओके, मैक्स. हम्म ठीक है. सो ये बेनिफिट है हमारा. अंडरस्टूड. तो इससे हम्म, क्लोनिंग टाइम बहुत कम हो गया. हाँ बोलो. हम्म। मैं वो उनका परफॉर्स का देख रही थी ना, तो उनके हम्म. बेनिफिट में यही लिखा था कि जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में बाइनरी फाइल्स पे ज्यादा काम होता है ना, तो वो हम्म. सेंट्रलाइज लाइक परफॉर्स सिस्टम यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे भी हैं. ठीक है, हमारे हम्म भी रिपोजिटरी मतलब सारे वैसे ही थे. हम्म हम्म तो उसमें बाइनरीज बहुत ज्यादा थे. अब देखो, रीजन यही है TFSC यूज करने का, कि आप क्लोनिंग टाइम नहीं देना चाहते हो. राइट. हम्म अब उनके प्रोडक्ट काफी बड़े होंगे और क्लोन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा. हम्म, तो हर डेवलपर को क्लोन करना पड़ जाएगा, तो दे माइट, पता नहीं, बट उनको शायद आइडिया नहीं होगा गेट LFS के बारे में. सो हाँ अगर आप उन्हें बताओगे इसके बारे में, हम्म दे विल बी सुपर हैप्पी टू हियर अबाउट दिस वन. ओके. हाँ ओके क्योंकि हाँ ये सबसे ज्यादा मेजर चैलेंज है सेंट्रलाइज से गेट में आने के लिए. पीपल सेंट्रलाइज में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको फाइल से मतलब है ना, बाइनरी हम्म से मतलब नहीं. तो भाई मैं क्लोन क्यों करूँ बाइनरीज? राइट. हम्म सो उसके लिए हम लोग गिट LFS का यूज करेंगे, विच क्रिएट अ पॉइंटर फाइल एंड ऑल आवर. इधर आप यहाँ पर भी माइग्रेट कर सकते हो, यहाँ पर भी एक आर्टिफैक्ट, यहाँ सारे आप रख सकते हो बाइनरीज. और अ हम्म सेपरेट JFrog आप यूज कर सकते हो उसके लिए. ओके, विच इज ये नॉट कॉस्टिंग मच, but the ये benefit it gives with the Git is way more further better than this one, better than using the purpose. ठीक है, बट ऐसे नहीं बोलना उसे. ठीक. ओके. पर, ए. अगर मैंने हम्म. वो जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री के बारे में बताया, लेकिन उनके जेडी में भी लिखा है कि एक्सपीरियंस मैनेजिंग आर्टिफैक्ट्री एंड डॉकर रजिस्ट्री, तो वो कैसे होता है मतलब डॉकर रजिस्ट्री और आर्टिफैक्ट्री? मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं करना. ठीक है. हम्म आपको बस वहां पर अपना एक अकाउंट बना देना है. ठीक है, JFrog पे. हम्म और JFrog को लिंक कर देना है अपने गिट LFS से, गिट से, क्या बोलते हैं, हाँ गिट से. सो गिट हम्म LFS क्या करेगा, सारे बाइनरीज एक फाइल बनती है. ठीक है. उस फाइल का नाम है विच, अब मुझे याद नहीं, 3 साल पहले किया था. विच फाइल ओके क्रिएट्स, स्टोर्स नॉट क्रिएट, स्टोर्स द पॉइंटर इन JFrog. नाम बता दो. क्या नाम था उसका? ठीक है, वैसे भी मैं इतना डीप नहीं बताने वाली हूँ आपको। हाँ, बट एक फाइल बनती है गिट की. ठीक है. हाँ उसका नाम ही रहता है कुछ, गिट टाइप से उसका नाम रखना पड़ता है. ऐसे आप वेग बता सकते हो, तुमने बहुत पहले काम किया था. तो इट्स हाँ प्रिटी गुड. आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट गिट फाइल, बट दैट गिट फाइल क्या कंटेन करता था वो, मैं नोट पैड दिखाता हूँ. तो जैसे मुझे DLLs रखने हैं से, ठीक है, बाइनरीज तो बहुत सारी बनेगी. हम्म मुझे चाहिए DLLs, तो मैं क्या करता था, उस गिट फाइल में star.dll लिख देता था. तो जितने फाइल से .dll एंड होते हैं, .dll एक्सटेंशन, ये सारे JFrog में चले जाएंगे. तो हम्म ये काम, ये पॉइंटर फाइल हम लोग बनाते थे. फिर star.zip, अगर मुझे zip भी नहीं चाहिए कि भाई ये भी डाउनलोड नहीं हो, तो इसे भी हम लोग यही कर देते हैं. ओके ठीक है. हम्म तो ये बेनिफिट होता था गिट LFS यूज करने का. और एक गिट इग्नोर, आपको पता है गिट इग्नोर का काम क्या होता है?
हाँ, वो आपने उस दिन बताया था ना। हाँ, तो सेम चीज है कि अब देखो लोकल में भी तो मैंने बिल्ड किया ना, तो हम्म। क्या बनेगा लोकल में? लोकल में भी तो आर्टिफैक्ट बनेंगे, यस। राइट? हाँ। तो अब वो आर्टिफैक्ट फिर से आप पुश करोगे, क्योंकि गिट पुश करोगे तो सारा जितने भी नए बने हैं सारे पुश हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो आप उससे कैसे प्रोटेक्ट करोगे फिर अपने कोड को, क्योंकि पुश करने में तो और ज्यादा टाइम लगता है। यस। डाउनलोडिंग इज फास्टर देन अपलोडिंग। तो अगर हम्म। अपलोड कर आप अगर बाइनरीज अपलोड कर रहे हो तो वो तो और ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो यस। फिर क्या करोगे? तो सिंपल से बोल देना, सर वी क्रिएटेड डॉट गिट इग्नोर फाइल विच कंटेन हम्म। ऑल द binaries, okay, which not to be pushed in the our source code, and that's it. Git ignores all those files which got created while building our project. ओके। For मतलब ये example, सेम हाँ, डाउनलोडिंग का, जैसे कि हमने वो बाइनरी फाइल जेफ्रॉग के लिए पॉइंट कर दी, राइट, तो वो हम सेम डाउनलोड नहीं करेंगे, तो वो सेम गिट डाउनलोडिंग इग्नोर केस में। में। ओके। हाँ, ओके। मगर अपलोडिंग के, गिट इग्नोर का काम अपलोडिंग में आता है। यस। ठीक है, तो जब भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं और हम मुझे अपलोड डीएलएल या जिप नहीं करना है, तो मैं गिट इग्नोर में इसका नाम डाल दूंगा बस। तो गिट यस। उसे इग्नोर कर देगा, अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, इतना तक में कोई कोई सारा क्लियर हो गया ना? आपको किस यस। टाइप से अगर जवाब हुआ आएगा तो एक वेग आंसर दे देना, गिट एलएफएस का नाम याद रखना, जहां वो पूछे क्लोनिंग टाइम से रिलेटेड, बोल हाँ। देना हम लोगों ने गिट एलएफएस यूज किया था, हम्म। इंटीग्रेटेड विद द जेफ्रॉग, दैट्स इट। हम्म। एक पॉइंटर फाइल बनाता था, वो पॉइंटर फाइल से हमारा क्लोनिंग टाइम रिड्यूस टू अबाउट 90%, वो रिड्यूस हो गया, एंड द सोर्स कोड गेटिंग डाउनलोडेड इन जस्ट अ सेकेंड और मिनट्स। ओके, हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया। ओके, देन फिर क्या आपने प्रिपेयर किया उसके बाद? एंसिबल। एंसिबल। ओके, मतलब सो एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं, मैंने वो हाँ, इन्वेंटरी प्लेबुक के बारे में किया है। हम्म, ठीक है, सो व्हाट वाज द मेन यूज ऑफ एंसिबल यू यूज्ड टू डू इन योर ऑर्गेनाइजेशन? रिव्यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ऐसे नहीं, आप एग्जांपल के साथ बताओ कि एग्जैक्टली आप क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करते थे? ओके। हम्म, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेज इज वेरी थ्योरेटिकल, समझ ही नहीं आ रहा आप एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हो। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंसिबल? When we want to, like, suppose that there are hundreds of servers, and if we want to upgrade the software on all of these servers, हम्म, the typical task is like, we have to log into each servers and then install or upgrade the software, then switch to another one, and then doing the same process. So it takes a lot of time. But हम्म, What Ansible does, like, it has one control. We downloaded or install the Ansible on one server, हम्म, and from that, it can control all other servers all through the SSH connection, and it will हम्म, install the software on that servers. राइट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सो वी वर Hmm. नॉट यूजिंग द एंसिबल वेरी हैवीली, ओनली व्हेन देयर इज अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड इन मल्टीपल सर्वर्स, एट दैट टाइम वी वर यूजिंग द एंसिबल। Hmm. ठीक है, so ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ओनली Uh, कपल ऑफ थिंग्स रिक्वायरमेंट रहती है। प्लेबुक आपको चाहिए जो आप YAML में लिखोगे, एंड व्हाट डू यू mhm. राइट इन प्लेबुक? यू राइट मॉड्यूल्स। सो व्हाट Yes. डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉड्यूल्स? Models. It's like a task which is written in YAML. Right. So it's a task. What task to be performed on the server? That Hmm. task is written in the form of YAML in those playbook. Okay. एंड रोल क्या डिफरेंट होता है मतलब? रोल क्या डिफरेंट होता है मतलब, क्वेश्चन क्या है? एंसिबल में वो रोल भी यूज करते हैं ना, तो लाइक मैंने वो रोल, क्वेश्चंस पढ़े थे ना, तो हम्म, वहाँ पे लिखा था कि डू यूज रोल इन एंसिबल। रोल इन एंसिबल। हम्म। वेल लाइक मैंने उसका नहीं आंसर यूज मतलब किया। ऐसा था कि लाइक हम्म, देर आर रोल्स टू ऑर्गेनाइज द ऑटोमेशन और रोल फॉर इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज। मुझे रू लगता है कि वो ओके, सेपरेट टास्क के लिए सेपरेट सेपरेट राइट। तो होगा। सो ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा देख करके
हाँ बताता ठीक है। हूँ, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने यूज नहीं किया रूल्स बेसिकली। हाँ। ओके, फाइन। और एंसिबल को हम गिटअप के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और वो इंटीग्रेट करने के लिए हमें वो प्लगइन्स ऐड करने पड़ते हैं, बस इतना ही प्लगइन्स, होता है ना। दैट्स इट। ओके। प्लगइन कहाँ ऐड करेंगे? हम वो मैनेजमेंट में होता है, वो जेनकिंस के जेंकिंस मैनेजमेंट में होता है। मैनेजमेंट में, राइट। हाँ। वो पाथ वगैरह पूछते हैं, बट हाँ देख, यस। तो वहाँ पे आपको सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, मैनेज प्लगइन्स में जा करके सारे हाँ प्लगइन्स। मैनेजमेंट यस। वेयर डू यू सी द लॉग्स इन जेंकिन? लॉग्स, वो भी मैनेज में भी होता है क्या, मैनेज नहीं नहीं लॉग्स। नहीं नहीं, मैनेज कंसोल आउटपुट। ओके। वो छोटा सा एक बटन होता है ना, छोटा सा टिक करके बटन होगा, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ सारा लॉग्स दिखते हैं हमें। हाँ ओके। ओके। हम्म। बट वहाँ भी एक लॉग बनते हैं और एक आप अपना भी लॉग बना सकते हो कि हाँ मुझे और डिटेल चाहिए। सो हम्म। यू कैन क्रिएट योर ओन लॉग एंड पुट इट ऑन द सर्वर, कि जब भी फाइल क्रिएट हो तो उसका सारे लॉग्स एक अपने सर्वर पे चले जाएं। हाँ So, ओके। वो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एनसीबी में भी बहुत सारे कमांड होते हैं क्या कि नहीं। मेजोरिटी तो ज़्यादा नहीं होते हैं, आई वुड से। तुम ज़्यादा डेप्थ मत जाना, ठीक है, ओनली अप टू हाँ विच यू आर हाँ। कंफर्टेबल। हाँ यस। So my job was to look, and we barely upgrading only when the Python, suppose Python get upgraded and there is some हम्म। Python dependency application. So we used to upgrade through the Ansible. So I didn't go, we were not having too much dependency on Ansible ऐसे बोल करके, ठीक है। ठीक हम्म, क्योंकि अभी टाइम कम है और ज़्यादा डेप्थ में इसका जा नहीं सकते अभी, है। ज़्यादा हाँ टाइम, टेक्निकल हो जाएगा। मेरी तो रात हो गई है। ओह, तुम्हारी रात कल कितने बजे है? सुबह 10 10 o'clock। हाँ, सो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी इसका, ठीक है। हम्म। हाँ। थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर तो किया है, ठीक है। हाँ। सो आई विल शेयर दैट विज। और क्या एक आधा प्रोजेक्ट बता सकते हैं हाँ, टीएफसी के अलावा। टीएफएसी के अलावा वाले प्रोजेक्ट्स। लाइक सिंपल से ऐसे टास्क, लाइक उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया था और क्या चैलेंज आया था, तो ऐसे। तो मुझे लगता है कि मैं बोल दूं कि मैंने एनसिबल और जेनकिंस का ऑटोमेशन किया था, तो वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे प्लेबुक फेल हो गया था। हम्म। हाँ। तो ये सो भी हाउ डिड बहुत यू? हाँ, मतलब। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये हो सकते हो। फिर आप ये भी, आपने क्लाउड पे काम किया है? क्लाउड वाला का वो पूछेंगे क्या, चांसेस कम है, बट चांसेस पूछ तो कम है। सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। तो बेसिकली तुमने किया है, उनको नहीं चाहिए वो अलग बात है, बट यू डिड इट। सो हाँ यस। ऐसा, हाँ। हम्म। तो आप बोल सकते हो कि मेरे कुछ कुछ चैलेंजेस क्लाउड में भी आए हैं, वर्क हाँ। किस किस टाइप के। सो वंस द इंटर्न डिलीटेड द होल डेटाबेस, okay, which हम्म। was on S3. So we had a little tough time with that one, but somehow we recovered. So they'll be more interested, how did you recovered? So वो बोल सकते हो कि we were enabled the versioning system, कि S3 में एक हम्म। versioning system होता है, so we यस। kept on that one. But some of the हम्म। files were not having the version system, so we get connect with AWS support, and there we try to back up, having the connection, and we get the backup from there. So it was a truly havoc situation at that time, but we dealt calmly. यस ओके। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन सारा किया है हाँ। इसमें, ठीक है। हम्म। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना। डोंट गो टू हाँ। मच टेक्निकल, उतना जाने की जरूरत नहीं। जैसे लिनक्स पे अगर मैं दिखाऊं, सो अ प्रोडक्शन इन लिनक्स सर्वर एक्सपीरियंसिंग इंटरमीडिएटली हाई सीपीयू, ओके। हम्म। लिनक्स पे ज्यादा चांसेस यही सीपीयू या फिर चल नहीं रहा सर्वर वगैरह वगैरह से पूछेंगे। हम्म। But the process causing it existing before you can catch it. So how do you diagnose it? तो कैप्चर करने के लिए ए टॉप टाइप का कमांड होता है, ठीक है। हम्म। सो उससे क्या पता चलता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना अभी तक हुआ है हिस्ट्री वगैरह में, वो सारा हम्म। कुछ, ओके। फिर इनेबल दिस, ये ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना बोल देना, ठीक है। थोड़ा सा रिलेटेड भी बोल दोगे तो चलेगा, अभी टाइम हाँ कम है हाँ। तो फिर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। हम्म। ये नैस एस पेन वॉक मी थ्रू दी, तो आपने नैस सैन
शेप, इस बारे में कुछ पता है? ये नहीं पता, नहीं। ठीक है, तो मत जाना इतना डेप्थ में। ठीक है। हम्म। मैंने वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस किए थे लिनक्स के, जैसे सीपीयू चेक करने हम्म, के लिए, डिस्क चेक करने के लिए, मेमोरी। हाँ, गुड। और वो क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो व्हाट इज द किया है, रोल ऑफ डॉक्टर। क्यूबरनेटिस इन हम्म। डॉकर? ओके। हम्म। देन क्यूबरनेटिस में एक टर्म होता है इमेज पुल पॉलिसी। हम्म। ओके, सो उसमें कितने टाइप के इमेज पुल पॉलिसी होते हैं? सो बेसिकली कि इमेज कब पुल करना है, एक है ऑलवेज, एक है प्रेजेंट, और एक है नेवर। अगर प्रेजेंट है तो पुल करने की जरूरत नहीं, ऑलवेज है तो मतलब हर वक्त पुल करो, और नेवर है तो नेवर पुल करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो लोकल इमेज है उसी पे काम करते हैं। ओके। ओके। और वो क्लस्टर आईपी वाला ना? हाँ। हाँ, तो देखो क्यूबरनेटिस में एक सर्विस है जिसका नाम है सर्विस फाइल। ओके। अब वो हम्म। सर्विस फाइल का काम क्या होता है? इंटरनल कनेक्शन करता है पॉड्स के बीच में। ठीक है। तो तीन टाइप के सर्विस होते हैं: क्लस्टर आईपी, नोड हम्म। पोर्ट, एंड लोड बैलेंसर। हम्म। ठीक है। क्लस्टर आईपी का यूज क्या होता है? लोकल में जितने पॉड्स हैं, मतलब मेरे सिस्टम में ओनली, उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। हम्म। नोड पोर्ट का काम क्या होता है कि अगर मेरे पास तीन नोड है, और एक नोड में पांच पॉड्स है, दूसरे नोड में तीन पॉड है, तीसरे नोड में छह पॉड है, तो उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है तो मैं नोड पोर्ट यूज करूंगा। ओके। ओके। एंड हम्म। थर्ड इज द लोड बैलेंसर। तो मैंने क्या बताया, यहाँ लोड बैलेंसर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। लोड बैलेंसर का यहाँ काम है, जो इंग्रेस में यूज होता है, लोड बैलेंसर कहाँ यूज होता है? इंग्रेस में। और वो क्या काम करता है? एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ता है, मतलब इंटरनेट से आपको कनेक्ट करेगा आपके एप्लीकेशन को। सो द हम्म। पीपल कैन एक्सेस माई एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट। यस। ओके। यस। हम्म। तो ये तीनों देख लेना। एक सो लोड बैलेंसर सिर्फ उसके लिए यूज करता है मतलब? राइट, और इनग्रेस यूज करता है वो? इंग्रेस यूज करता। तो ओके। सर्विस में, सर्विस फाइल में यहाँ क्लस्टर आईपी की जगह बाय डिफॉल्ट अगर पूछेंगे कौन सा होता है, तो बाय डिफॉल्ट क्लस्टर आईपी होता है। अगर आपको नोड पोर्ट या फिर नोड लोड बैलेंसर यूज करना है, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन इन द सर्विस YAML फाइल ओके। कि मैं और वो इंग्रेस। क्लस्टर आईपी लाइक स्टैटिक आईपी भी प्रोवाइड करता है ना? हाँ, क्लस्टर आईपी स्टैटिक रहेगा, पर ईच पॉड एक यूनिक आईपी एड्रेस रहेगा। हाँ। जब यस। तक वो पॉड डिलीट ना होगा, पॉड डिलीट हो गया तो रेप्लिका सेट एक नया पॉड क्रिएट कर देगा, बट उसका आईपी एड्रेस चेंज रहेगा। हम्म। ठीक है। एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ये सब पढ़े ना? हाँ, थोड़ा बहुत एस किया था हाँ, मैंने। एसक्यूएल के कमांड थोड़े देख लेना, वहां पे मेंशन किया गया है इस पे हाँ, एक्सप्लिसिटली। नहीं, उन्होंने तो वो सारे डाटाबेस के लिए तो वही हाँ, लगती है शायद से, हाँ। नहीं, तो एक तो एसक्यूएल होता है, एक नो एस सीक्वल होता है। हाँ, तो अगर उन्होंने वो डाटाबेस पूछे और अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इस पे वर्क किया है, तो मुझे बोलना है कि मैंने वर्क नहीं किया है, लेकिन मुझे पता ही है क्या होता है और कैसे वर्क करता है। मतलब अब बोल सकती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल हम लोग यूज करते थे, MS हम्म। एसक्यूएल। MS एसक्यूएल। सो ओके। आई वाज नॉट हैविंग द full this one full access to that one because so many critical data were there, but we were हम्म। doing some queries. Some of our script included some query to do over that and extract the data from that one. ठीक है। ओके। तो वो एक दो क्वारी अगर थोड़ा सा देख लेना, फ्रॉम, इनके सीक्वेंस क्या होता है, फ्रॉम, सिलेक्ट वगैरह के, ग्रुप हाँ, बाय, देख। ऑर्डर बाय। ओके। हम्म। ठीक है। और वो एंड इंडिया में भी ऐसे दो दो इंटरव्यू होते हैं क्या? हाँ, इंडिया में तो दो चार हो जाते हैं। अच्छा। मेरा खुद चार इंटरव्यू था मेरा। अरे बाप रे। बट पहला दो आपने निकाल लिया तो लास्ट का दो इजी रहेगा। हाँ। ठीक है, मगर आपका क्या है, दो इंटरव्यू है? हाँ, मतलब दो तो वो बेसिक तो उन्होंने बोला है कि मतलब पहला तो कल का तो एक ही लोग लेने वाले हैं। हम्म। फिर बाद में अभी तो उन्होंने बताया नहीं है, ये होने के हाँ बाद ही। ठीक है, ये होने के बाद ही पता चलेगा कितने हम्म। इंटरव्यूज होंगे। हाँ। ठीक है। एक वर्ड होता है पोस्टमार्टम। बेसिकली जब भी कोई
मेजर इंसिडेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सो वो जार्गन यूज करते हैं पोस्टमार्टम। हम्म कि हाउ डू यू राइट अ पोस्टमार्टम आफ्टर मेजर इंसिडेंट। तो सिंपल सा है, आप इसका विकी पेज हम लोग बनाते हैं, इवेंट का हर एक टाइमलाइन, इट जस्ट लाइक ह्यूमन के साथ जैसे किया जाता है, सेम आपको जॉब के साथ करना है। कि वो इंसिडेंट कब हम्म हुआ, कैसे हुआ, हु डिड दैट वन, उससे क्या क्या हम्म इफेक्ट हुआ, आपने रिकवरी करने के लिए क्या क्या टूल्स वगैरह यूज किए हैं, रिकवरी में कितना टाइम लगा, तो ये सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। यस। यहाँ डसॉल्ट की जगह आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल सकते हो, ठीक है। हम्म। ठीक है, ये डीमन सेट एंड द डिप्लॉयमेंट इन कुबरनेटिस क्या होता है। इट्स लाइक हाँ। इट इंश्योर्स, डीमन सेट मतलब ये इंश्योर करेगा एक पॉड पर नोड होना ही होना चाहिए, ठीक है। हम्म डीमन सेट इंश्योर्स एग्जैक्टली वन पॉड, एक ही पॉड रन होगा एक ही नोड में। मतलब अगर नोड मेरा EC2 इंस्टेंस है तो EC2 इंस्टेंस में बस एक ही पॉड रन होगा, ये डीमन सेट है। ओके। और डिप्लॉयमेंट क्या बोलता है कि मैनेजेस स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉड रेप्लिकास एंड शेड्यूलर्स अवेलेबल ऑन नोड्स। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से तीन नोड अवेलेबल, हम्म सॉरी, पॉड अवेलेबल हो सकते हैं एक नोड में। हम्म इट इंश्योर्स specific number of management of the pod in nodes maintained by the deployment, whereas daemon set ensures the exactly one pod per ओके। node should be there. That's it. हम्म। टेराफॉर्म पूछेंगे क्या, टेराफॉर्म है क्या? टेराफॉर्म उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है। नहीं किया ना। नहीं। बट स्टिल अगर पूछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाँ, कोड मतलब में, रिज्यूमे देख के पूछ सकते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में आपने एंसिबल यूज किया और कुछ टूल आपने यूज किया, तो बोल देना हाँ टेराफॉर्म वी यूज टू डू फॉर द क्लाउड, हम्म। क्लाउड मैनेजमेंट, ओके, क्लाउड रिसोर्स ओके। मैनेजमेंट। तो जो हम्म। पता है सिंपल सा काम जॉब क्या टेराफॉर्म का, ये कि एक TF फाइल बनाना है और उसमें आपका जॉब मेंशन करना है, यस। ठीक है। एंड TF इनिट, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, हो जाएगा टेराफॉर्म। हम्म। ओपन पॉलिसी एजेंट इन CI/CD, OPA, ये सब स्पेसिफिक जार्गन्स है जो हाई लेवल में पूछे जाते हैं। अच्छा, ओके। ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑटो स्केलिंग, कॉमन क्वेश्चन है। हम्म तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम लोग पॉड के नंबर इंक्रीज करते हैं ट्रैफिक यस। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वर्टिकल हम्म। में क्या होता है, एक ही पॉड के कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज कर देते हैं, यस। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाँ। उसका रैम वैम सब बढ़ा देंगे। हाँ, वो EC2 टाइप ना, EC2 का हाँ बिल्कुल, इसी हॉरिजॉन्टल टाइप का। वर्टिकल करता है। हम्म, इसमें नंबर ऑफ EC2 आ जाएंगे और इसमें वन EC2 विथ नंबर ऑफ हाई रैम और रोम, वो इंक्रीज हो जाएगा। यस। देन 502 एरर, ये भी आप बोल सकते हो कि वी व्हेन वी वर वर्किंग विद द Kubernetes we were getting lot of 502 errors, so how हम्म do you deal with that one। तो ये कुछ हम्म प्रोसीजर मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं हम्म कि आप कैसे चेक करोगे आर पॉड्स आर रनिंग इन द स्टेट रेडी और नॉट, ठीक है। चेक द kubectl गेट पॉड, फिर उसका डिस्क्राइब करेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रैफिक हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी हम्म चीजें बेसिक आप बता सकते हो। सो ओके। दैट्स ऑल। यस। हम्म, और कोई सब, हाँ, SSH का। हाँ। हाँ ओके, सो SSH के केस में क्या है, पहले तो अगर अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो और आपको लिनक्स सर्वर से इंटरेक्ट करना है, सो हाउ वुड यू डू हम्म। दैट। तो उसके लिए हम लोग SSH के लिए एक टूल यूज करते हैं, पुट्टी। हाँ। यस। ओके, सो पुट्टी का काम क्या होता है, वी जस्ट पुट द IP एड्रेस और द होस्ट नेम, ओके, हम्म। एंड देन कनेक्ट विथ कनेक्ट। सो पुट्टी हेल्प अस टू कनेक्ट द डू द SSH ऑन द सर्वर्स, ओके। एक तो तो ये वो हो गया। हम्म। ऐसे बोले, वो मुझे यूजर नेम, IP एड्रेस वगैरह ऐसे दे सकते हो क्या? तो हाँ बिल्कुल, वो ओके। बोलेंगे कि अगर यूजर नेम है, सपोज हम्म यूजर नेम है एडमिन, IP एड्रेस है 32567, ये अगर IP एड्रेस है, हम्म ठीक है, 3:25, ये IP एड्रेस है। सो हाउ वुड यू SSH। तो कमांड क्या है, SSH यूजर नेम यूजर नेम @ एट द IP रेट, एड्रेस। हाँ। बट अगर वहां पर सीक्रेट की भी यूज हुआ है, कीजेन, हम्म तो
तो उसका आपको लोकेशन देना होगा, -i करके, फिर उसका लोकेशन देना होगा कीचेन का, हाँ कि ओके। वो सिक्योरिटी कहाँ पर है, अगर वो पूछे तो। ठीक है। हम्म सो along with the SSH we have to provide the secret ID or secret key location as हम्म। well to तो वो do की SSH। आईडी देंगे क्या मुझे? की आईडी नहीं देंगे, वो एक फाइल में की स्टोर होता है, तो फाइल का पाथ आपको देंगे, अच्छा। फाइल नेम विद द फाइल पाथ। इट कुड हम्म। बी, तो आप ये भी पूछ सकते हैं वेयर डज दिस SSH से रिलेटेड फाइल्स का लोकेशन क्या होता है लिनक्स में, तो हम्म। हमेशा ETC फोल्डर में रहता है SSH। ओके, यस हाँ। डॉट SSH यस इसी यस। से, और इसके अंदर में ही आपका सारा फाइल में है। तो कीचेन जो भी हम लोग बनाते हैं ना, वो जनरली इसी फोल्डर के अंदर .sh के अंदर बनाते हैं। ओके। हाँ। तो ये पाथ फिर हम लोग यहाँ पर -i दे करके पास करते हैं। हम्म। ओके, फाइल नेम अलॉन्ग विद द पाथ, फाइल पाथ। ठीक है। यस ओके। और एक एडवांस होता है SFTP ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप कहीं बोलते कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब फाइल अगर मुझे ट्रांसफर करनी है हम्म by doing the SSH to a system to a this one, this IP एड्रेस, मतलब इस सिस्टम में मुझे एक फाइल भेजना है, तो हम्म। वो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा, आई विल यूज SFTP फॉर दैट वन एंड द सेम कमांड। ओके। सो ये कब काम आएगा? ये फाइल ट्रांसफर के काम में आता है, हम्म। लाइक डूइंग SSH फॉर द फाइल ट्रांसफर पर्पस। ओके। ओके। और वो पुट्टी में सिर्फ आईपी एड्रेस ही डालना होता है ना? IP एड्रेस या फिर होस्ट नेम। ओके। ओके, तो मशीन का कुछ नाम होता है, आई शो यू दैट। अगर वो ये भी अगर पूछे कि विच टूल यू यूज टू क्रिएट द टेम्पररी VMs, वर्चुअल मशीन्स, हम्म। तो VMवेयर आंख बंद करके बोल देना। VMवेयर क्लाउड, AG क्लाउड भी बोल सकते हो, या VMवेयर AG क्लाउड चलेगा। और AWS से कर सकते हैं, वो नहीं मिल सकता? हाँ, वो भी बोल सकते हो, दैट्स इट। वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। ओके, हम लोग नहीं यूज करते हैं ऑन प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ओके, ये क्या है VMware? VMवेयर यहाँ से हम लोग ये बनाते हैं, VMs, जस्ट लाइक वहाँ EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, यहाँ पर सेम देखो, लिनक्स बनाना है, यहाँ से बना करके लिनक्स बना लेंगे, एंड वी कैन गिव इट टू द पर्सन इट बिलोंग। हम्म। ठीक है। तो ये क्लाउड पे नहीं है क्या? आ, ये VMवेयर क्लाउड पे है, प्राइवेट क्लाउड पे है। ओके। ठीक है। और वो जो क्लाउड है वो पब्लिक वाला क्लाउड है, आई मीन AWS वाला। सो यू कैन यूज हम्म इट दैट ऑन प्राइवेटली एज। तो अगर ये जैसे ये लिनक्स का है मेरे पास, ठीक है, हम्म तो इसका एक ये है होस्ट नेम जो इस टाइप का रहता है, या फिर उसका IP एड्रेस रहेगा, ये है IP एड्रेस, होस्ट नेम या ओके। IP एड्रेस, इन दोनों में से आप कुछ भी डाल करके पुट्टी के साथ एक्सेस कर सकते हो सर्वर को। हाँ ओके। और डिफॉल्ट पोर्ट याद रखना 22 होता है इस केस में। ओके, SSH का। SSH का डिफॉल्ट पोर्ट 22, चाहे हम्म। वो आप ये EC2 इंस्टेंस से करो या कहीं से भी करो, इट्स ऑलवेज 22। हाँ यस। एक और चीज है, आप देख लेना, मतलब मैं डॉक्यूमेंट में भी डाल दूंगा कि 404 एरर कब आता है, 400 एरर कब आता है, 505 कब आता है, हाँ। 503 एरर कब आता है। हम्म। ठीक है, तो इन सब से आप कैसे डील करोगे, किस किस सिचुएशन में ये सारे एरर्स आते हैं, वो आपको देख लेना एक बार। ओके। ओके, और कोई सवाल जो हम लोग छोड़ रहे हैं? डॉकर से कोई और सवाल? डॉकर रजिस्ट्री वगैरह क्लियर है, डॉकर कंटेनर क्लियर है? ठीक है। डॉकर वो उन्होंने डॉकर रजिस्ट्री बोला है, तो वो कैसे मैनेज डॉकर करते हैं? रजिस्ट्री सिंपल है, यू क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव अ पॉलिसी टू क्रिएट ऑल दी डॉकर images with our हम्म docker with our name। तो बेसिकली आप उसमें ये भी बोल सकते हो कि we have whenever there is a change going on, couple of we used to, in every month or every 2 3 weeks, we used to send a version of that image to our docker registry। Okay,
सो वहां पर ही, और इसमें क्या बोल सकते हैं, हाउ डू यू मैनेज? तो सिंपली लुकिंग एंड गोइंग टू द डॉकर हब, लुकिंग इनटू द रिपोजिटरीज, वो भी उतना मैटर नहीं करता, इतना नहीं करते कोई। मैनेज में वो सिर्फ सवाल पूछेंगे, हाउ डू यू मैनेज डॉकर इमेजेस, एंड देन इट जस्ट लाइक गिटहब की तरह सोचो तो। दे वोंट आस्क यू कि गिटहब आप कैसे मैनेज करते हो। इट्स लाइक आपने क्या क्या गिटहब पे कर सकते हैं, या मेन काम क्या होता है। ठीक है, तो ओके। ऐसे नहीं पूछेंगे मैनेज क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। यू सेंड, अगर वो वहां पुश नहीं हो रहा है, डॉकर इमेजेस आर नॉट गेटिंग पुश, देन वी हैव टू एक्सप्लिसिटली लुक इनटू द डॉकर रजिस्ट्री, व्हाट इज द इशू, इज इट इज एक्सेप्टिंग द इमेज पुल रिक्वेस्ट और नॉट। सो वो सारी चीजें करके देखते हैं हम लोग। ओके, बट दोज थिंग्स आर वेरी रेयर, generally it does not happen in case of us. Only if there is issue with the image itself, then only we face such issue. Otherwise, if there is no issue with the image, it generally get uploaded on Docker registry. ओके। और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वीएम वेयर यूज होता है ना, हम्म। वर्चुअल मशीन्स के लिए। और हम्म। उन्होंने उनके जेडी में केवीएम लिखा है, तो वो मतलब वो केवीएम यूज करते हैं, तो मैं वीएम वेयर बता सकती हूँ उनको ना। हाँ, बता सकती है। हाँ ओके। हम्म। क्योंकि वो भी कर्नल बेस वर्चुअल मशीन ही है ना, तो वो भी हम्म। वो यूज करते होंगे। हम्म। ओके। ओके, हम्म दैट्स ग्रेट। और डॉकर क्यूबरनेटिस भी अभी क्लियर है। हम्म। इंग्रेस का कब यूज करते हैं, और इंग्रेस के साथ कौन सा सर्विस जाता है? लोड लोड बैलेंस बैलेंस। है। ओके, हाँ। कितने टाइप के सर्विसेज होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, यस। क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर। हम्म। व्हाट एल्स? ओके, आई स्टॉप। कुछ और है? नहीं ठीक है। तो स्टिल सुबह क्या उठ करके उन्होंने, एक बार। गो हाँ ठीक अहेड। है, उन्होंने इतने सारे स्किल्स मेंशन किए हैं और मेरे रिज्यूमे में दो दैट्स चार ही ओके, है। उन्होंने सिलेक्ट किया है ना, आपने थोड़ी ना गया है। दे हाँ। हैव सिलेक्टेड यू, यस। सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन व्हाट यू हैव डन मोस्टली। हम्म। फिर वो अलाइन हो रहा है वो उतना ही, आप अगर अच्छे से बता दोगे ना, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। टूल्स एवरी कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होते हैं, यू कैन नॉट ये। नो, यू यू शुड नॉट नो ऑल द टूल्स। बट वो हम्म। काम कैसे करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, और कुछ मेजर टूल जो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है हर जगह, आपको उन पे कमांड होना चाहिए, दैट्स इट। हम्म। कि लिनक्स का सर्वर मिल जाए तो कैसे करेंगे, कुबरनेटिस मिल जाएगा तो उसको कैसे करेंगे, डॉकर मिल गया तो कैसे करेंगे। अदरवाइज कौन सा क्लाउड यूज करें, मुझे क्या पता आप कौन सा यूज कर रहे हो। यस। हम्म। और आई गेस मेजर उनका ध्यान टीएफएसी पे जरूर गया होगा सिलेक्ट करते टाइम, कि हम्म। यू हैव सम रिलेशन विथ सेंट्रलाइज। लाइट्स यस। ओके, हम्म तो बी क्लियर, क्लिस्टर क्लियर विथ दिस वन। ओके। यस। और कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन? नहीं, अगर बट होगा स्टिल तो तुम अगर मैसेज सुबह कर तक रहे तो एनी टाइम पिंग मी। ओके। यस। I'll quickly reply. यस। Okay, ओके। I'll stop here. Hmm. Recording stop. मैं 1 घंटे में अपलोड कर दूंगा, हाँ। ओके चलेगा।